एक घटना घटी कह सकते हैं और मुझे पता नहीं मुझे शेयर करना चाहिए कि नहीं। समथिंग हैपेंड एंड आई डोंट नो शुड आई शेयर और नॉट। नो, आई वेंट to listen to a knowledge session, and there, after the session was over, people were discussing and somebody was saying, all these content creator are like smiling on the camera, but when they came off the camera, they're all sad. And I was thinking, how do you know, how can you judge them? हाँ, तो मैं ये सेशन सुन रहा था, नॉलेज सेशन। उसमें नॉलेज सेशन खत्म होने के बाद कुछ लोग डिस्कस कर रहे थे। ऑटोलिंक टीचर्स नहीं थे, वॉलंटियर्स ही थे, और वो लोग डिस्कस कर रहे थे और कह रहे थे कि ये सारे जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, वो लोग ऐसे हंसते हैं, बहुत स्माइल करते हैं, लेकिन जैसे कैमरा बंद हो जाता है उनकी जिंदगी उदास है। मुझे लगा कि ऐसे कैसे आपको पता? इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स है, इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स है जो आर्ट ऑफ लिविंग में भी है। How do you know that everyone is sad? And once they turn off their cameras, they are sad. This is your ego telling you that you are superior because you listen to knowledge, you do Kriya, you do advanced courses. That's the reason you are superior than them. But that is your ego. If you are really done advanced courses and doing sadhana and everything, then compassion should come, not ego. Correct? So this is your ego. And then I realized how sad once, if you see ego in others, that means you have bigger ego than them. That's the only reason why you could see that. Compassion is not there. And then I realized, oh, I'm making the same mistake. We are judging the content creators and I'm judging them. This is my ego. So जब मुझे ऐसे लगा कि अरे हाँ, उनको लगता है वो क्रिया विया करते हैं इसलिए कंटेंट क्रिएटर से बेटर है, ऐसा थोड़ी ना है। हाँ, ये तो गलत है। तो मैंने बोला ये तो तुम्हारा अहंकार है। लेकिन तब मैंने रियलाइज किया अरे मुझे उनमें अहंकार इसलिए दिख रहा है कि उनसे ज्यादा अहंकार मुझ में है। हाँ, अगर मुझ में अहंकार नहीं, उनसे कम होता तो मुझे उनका अहंकार दिखाई ही नहीं देता। हाँ, कंपैशन आता था। हाँ, दया भाव आती थी, समझाने का मन होता था ये। हाँ, लेकिन तब मुझे शंकर भगवान की कही एक बात याद आई कि भक्ति में अहंकार जल में विष के समान है, जहर के समान। हाँ, जल में विष के समान है। So then I remembered Shivji said that in devotion, ego is like poison in the water. Ego is like poison in the water. Devotion is water, ego is poison. So even 2 drops of poison in water that makes the water useless, right? Then I said, oh, and why is it happening? Then I realized, I remembered my mother used to say, in vacations, we used to come at our native place and then we have to go to a well to bring water and everything. So, that mud pot, Indian mud pot is smaller at the opening, bigger in the between, and smaller in the end. So, my mother used to say, if the mud pot is empty, it's easier to carry. If it is full, it is still easier to carry because it doesn't wobble. But if it's half full, then it wobbles. It goes right and left. It's very difficult to control on your head. So half knowledge is very dangerous, very difficult to control. It goes this way, this way, this way, like that. हाँ तो मुझे याद आया जब हम लोग छुट्टियों पे गांव आते थे, छोटे थे, तब हम लोग कुएं में जाते थे पानी लेने के लिए। तो जब मटका होता था तो मेरी माँ ने बोला जब मटका खाली हो तो उसको कैरी करना आसान होता है सर पे। हाँ, पूरा भरा हो तो भी आसान होता है, स्टेबल होता है। हाँ, आधा भरा हो तो राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट करता है। हाँ, तो आधा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। लेकिन आप अगर मटके को देखो ध्यान से तो मटके का मुंह छोटा होता है। हाँ, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप है ना अंदर बहुत असीम ज्ञान रखो लेकिन मुंह छोटा रखो। मुंह से बहुत ज्यादा ज्ञान देने जाओगे, हाँ, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, तो ऐसा, हाँ, जैसे शंकर भगवान है, शंकर भगवान ने पूरी गंगा को अ, जटाओं में समा के रखा है, लेकिन कैसे एक छोटा सी सिर्फ धारा धरती पर भेज रहे हैं, क्योंकि एक साथ सारा ज्ञान भेज दिया तो हम पागल हो जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। Inside us should be vast knowledge, but our mouth should be small. We should not like vomit all the knowledge at the same time. So slowly, how you say how that matters. Shivji has all the knowledge in his head, Mother Ganga, but only one, what you call dhara in English, one little bit of water is coming out of that. So he is control in giving knowledge. That is very important. So, and you know what happened?
Then I realized in all that, me being an idiot, forgot that the mud pot was never meant to be filled with water, was never meant to be filled with knowledge. हाँ, तो मैंने बाद में ये रियलाइज किया, वो मटका कभी ज्ञान से भरने के लिए बना ही नहीं था, वो मटके में कभी पानी भरना ही नहीं था। वो अच्छा मटका तो द वाटर ऑफ नॉलेज is meant to wash the mud pot. Okay, so don't say knowledge is not important. Knowledge is important to wash the mud pot. But once you wash the mud pot, then you throw the water. You don't keep it in the mud pot. हाँ, देखो ज्ञान का जो पानी है वो मटका धोने के लिए है। हाँ, तो ज्ञान भी जरूरी है मटका धोने के लिए। एक बार आपने मटका धो लिया, फिर आप उसे फेंक सकते हो पानी को, और उसको माखन से भरना है। हाँ, नहीं था। ओके, वो मटका तो इसलिए था कि उसके अंदर माखन भरा जाए। हाँ, द मड पॉट वॉज मेड सो दैट वी पुट बटर इन इट. Huh? So, and what is butter and how to make butter? So, when we churn ourselves, like really churn ourselves, manthan, churn ourselves in sadhana, seva, satsang, and knowledge. And that after churning, what comes up is butter. Huh? You have to fill that mud pot with that butter. You understand? हाँ, हिंदी में वो मटका कभी ज्ञान के लिए, पानी के लिए बना ही नहीं था। वो मटका तो हमेशा माखन के लिए बना था। और माखन क्या है? माखन ये है कि जब हम साधना में, सेवा में, सत्संग में, ज्ञान में खुद को बहुत मथते हैं। हाँ, मथना समझता है ना सबको, ऐसे ऐसे करते हो। हाँ, तो जब खुद को इतना मथते हैं, उसके बाद जो हमारे अंदर से निकलता है आखिर में, वो है माखन। और तभी तो माखन चोर आएंगे उसे चुराने के लिए, अदरवाइज नहीं आने वाले, कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, कृष्ण भगवान के पास क्या कम ज्ञान है कि आपका मटका लेने के लिए आएगा जिसमें ज्ञान भरा हुआ है? कोई वैल्यू नहीं है उस उनके लिए। हाँ, कृष्ण भगवान तो तब आएंगे जब उस मटके में माखन भरा हो। हाँ, सी in English, that's why that is butter. Huh? When we churn ourselves in seva, sadhana, satsang, and knowledge, what comes up in the end is butter, and we have to fill that mud pot with butter. And where do you keep the mud pot filled with butter? At the highest point in the house. Huh? So that much value you give to that. Huh? And only then the Lord Krishna will come to steal it. So it's very important. And you have to, that mud pot filled with butter is always closed with a lid. So what you are inside, the bhakti, the devotions, you don't need to show everyone. It's fine. You keep it inside. It's yours. हाँ, तो जो माखन का मटका है, हाँ, वो हम लोग कहाँ रखते हैं? ऊपर रखते हैं सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उसे देते हैं। बराबर है? तभी उसी को चुराने के लिए कृष्ण भगवान आएंगे। हाँ, उसी के भूखे हैं। हाँ, तो ये सब में मुझे ये सीख मिली। In all this, I learned this, that when I was listening to the knowledge session, I was wearing many caps. Many caps. Oh, I'm a mechanical engineer. Oh, I'm an art of living teacher. Oh, I know so much. Oh, I'm this, I'm that, I'm blah, blah, blah. So many caps. So then what I did, I removed all the caps, kept it aside. They'll be useful some other time. And then I wore a cap of a student cap. Sincere seeker cap. A beautiful, I don't know cap. Then you know what happened? हिंदी में बोलता हूँ मैं पहले। मैंने फिर ये रियलाइज किया कि ये सारा गड़बड़ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने बहुत सारी टोपियां पहन के रखी है, कैप पहन के रखी है। अरे मुझे बहुत कुछ पता है, अरे मैं तो आर्टोलिंग टीचर हूँ, मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, ब्ला 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 करके बहुत सारा कैप्स मैंने सर पे पहन के रखा है, टोपी पहन के रखी है। तो मैंने सारी टोपियों को निकाला, साइड में रखा, कभी किसी और दिन काम आएंगे। और फिर मैंने एक स्टूडेंट कैप पहना। हाँ एक सच्चे साधक का कैप पहना। सुंदर, मुझे नहीं पता वाला कैप पहना।
हाँ, जैसा कैप पहनेंगे तभी तो सीखेंगे। देखो बच्चे कितने खुश रहते हैं। हाँ, तो पता है इसके बाद क्या हुआ? जैसे ही मैंने ये कैप पहना, स्टूडेंट कैप पहना, क्या हुआ पता है? आनंद, आनंद, आनंद। The moment I wore this cap, student cap, what happened? Anand, Anand, Anand. Happiness, happiness, happiness. You know, knowingly, unknowingly, you know, we all these thing happens, because we think, oh, I know. Hey, what do you know? You know nothing. बस यही था। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। मैंने आप जो बोले ना उस दिन वो सेक्शन मैंने भी देखा है, लेकिन मेरा मन में भी आया था, लेकिन मैं यूट्यूब में ही आपको देख के आपको ज्वाइन किया, ठीक ना। हाँ एक जैसे सोशल मीडिया में आजकल खराब भी दिखाता है, अच्छा भी दिखाता है। वो हमारे ऊपर है, हम कौन सा नॉलेज ले, ठीक ना। हाँ और गुरुदेव बोले, एक समाज में गुरुदेव आश्रम का बारे में ही बोला था, समाज में 12 तरफ का आदमी रहता है। 4 बहुत इंटेलिजेंट, हम्म, 4 जैसे मेरे जैसे कम ज्ञान वाले। एक सेक्स जैसे आप अभी जो बोले ना, ये मैं फिर से 4 बार 5 बार देख के रिपीट करूंगी मेरे अंदर भरने के लिए। और कुछ होता है, जैसे गुरुदेव तो बोले लुच्चा जैसे ज्यादा सब जानते हैं, लेकिन हमें सबको लेके ही आगे बढ़ना है। हाँ गुरुदेव ऐसे ही बोला था। हाँ, हाँ, लेकिन हमारे ऊपर है, हम किसके तरफ जाए, हम सच अच्छे है, के तरफ जाए या बुरे के तरफ जाए। तो सच उस है। दिन आप अभी जो बोले ना, मैं भी सुने थे, आप ही हाँ मुझे लिंक भेजे सुने थे, हाँ लेकिन मैं सुन के मेरा, भैया आप बोले सोचो तुम्हारा बहुत नॉलेज है, उस दिन आप बोले थे ना मैं ही सबसे अच्छी हूँ, मैं ही सबसे टैलेंट हूँ ऐसे। लेकिन फिर भी मुझे इतना, जैसे आप लोग जो बोलते हैं ना, मुझे वो अंदर घुसाने में 4-5 बार लगते हैं। मैं हाँ एक ही बार, वो ये 5 बार 6 बार में सुनती हूँ, बाद में मेरा अंदर जाते हैं एक हाँ बच्चे की तरह। हाँ जैसे हाँ। मेरा, हाँ, मेरा और ये बेटी, सबके साथ होता है, सिर्फ आप हाँ नहीं हो। मेरा, ये बार हाँ, बार धोना पड़ता है। बाबू ने तो एक हाँ, बार ये कहा था, जब हम लोग हैप्पीनेस प्रोग्राम 36 टाइम्स करते हैं, तब एक बार हाँ, हमें समझ में आता है। वही। तो हाँ ऐसे ही मैं सुन के बाद में मैं सोचा, नहीं नहीं, ये गुरुदेव जो जैसे बोले थे, ये सभी में, अभी हम लोग रियल लाइफ में भी देखिए भैया, जैसे हम लोग जाते हैं ना, वहां में खराब भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, ठीक ना। हाँ हम लोग को नॉलेज लेने पड़ते हैं, कौन सा अच्छा कौन सा बुरा। हाँ मेरा तो वही समझ में आए, और आप जो बोले ना बहुत अच्छे बोले हाँ। थैंक यू। अच्छा आप सोचो, हाँ, हम लोगों को जज करते हैं, ये अच्छा है ये बुरा है। अगर सोचो, अगर गुरुदेव जज करने लग जाए तो, हाँ, ये हाँ, अच्छा है इसको क्रिया सिखाते हैं, ये बुरा है इसको नहीं सिखाते हैं, हाँ, ये अच्छा है इसको सत्संग में बुलाते हैं, ये अच्छा नहीं है इसको सत्संग के बाहर निकालो। ऐसा करने लगे तो हम सब आर्ट ऑफ लिविंग के बाहर हो जाएंगे, आर्ट ऑफ लिविंग में बचेंगे 5-6 लोग। हाँ, हाँ, जब गुरुदेव हाँ, जब गुरुदेव इतना अहंक जजमेंट नहीं दिखाते, और दिखाते क्या है, दया भाव कंपैशन लव प्रेम ऐसा सब दिखाते हैं, तो हम कौन होते हैं जज करने वाले? जब गुरु जज नहीं कर रहा है, व्हेन द गुरु इज नॉट जजिंग, हु आर वी टू जज, राइट? एंड दैट टाइम आई वेंट इनटू जजमेंटल, अरे हाउ कैन यू से ऑल कंटेंट क्रिएटर्स आर बैड और ऑल कंटेंट क्रिएटर्स आर सैड? ये तो गलत हो गया। हाँ, आप बोलिए। गुरुदेव बोले सबको 12 तरफ का आदमी रहता है, सबको लेके चलो, तभी हाँ हम लोग चल सकते हैं। हाँ, हाँ लेकिन को हम लोग कैसे चलते हैं उस लोग के जैसे ना, हम लोग अच्छे बन के, वो हमारे ऊपर है, लेकिन हाँ चलना सबका साथ है। हाँ। वही बोले। संग मेरा तो चतुर। जो गुरुदेव बोले मेरा तो वही समझ में आया था। हाँ हाँ। नहीं, आप बराबर समझ। बहुत अच्छे बोले, उस दिन मेरा भी माइंड में आया, अरे ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी मैं सोचा वो गुरुदेव जो बोले थे वही शायद है, हम लोग को लेके चलना है। अभी हाँ सभी संस्था में ऐसा आदमी है ही,
वो ये बहुत ज्यादा वो करते हैं। और अभी जो बोले ना, जो सबसे ज्यादा ज्ञानी है, जैसे मैं नीता वैज्ञा जी का भी सुनती हूँ। हाँ वो तो पूरा जैसे हनुमान है, हनुमान जैसे राम के भक्ति में प्रेम में डूबे हुए हैं, पूरा समा गए हैं, वो ऐसा है नीता वैज्ञा जी, ठीक ना। हाँ। और आप वो दिनेश बाबा का जो बोले, उनका और एक है ना दिनेश दिनेश भैया कुछ, और बाऊ, खुर्शीद हाँ बाटी वाला। हाँ, उस लोग को मैं मिली हूँ वो हाँ। आश्रम में। थोड़ा भी थोड़ा भी एटीट्यूड नहीं, कुछ भी ठीक है। नहीं, जैसे पूरा माटी का जैसा है। हम लोग को पूरा जैसे पूरा अपनापन लगते हैं ऐसे। तो ऐसे बहुत है जो ज्ञान से भरा हुआ है, वो कभी नहीं किसी को छोटा बड़ा समझता नहीं। हाँ। आप वो ठीक बोले, जो खाली है और ये अपने आप को ज्यादा समझते हैं, वो आप ठीक बोले। हाँ, लेकिन मेन बात यह है कि जज नहीं करना, सबको कंपैशन से देखना, अपने ही है देखना, तो आप ज्ञानी हाँ हो। हाँ, हाँ पंडित, भगवत गीता में गुरुदेव कहते हैं पंडित वो है जो सबको समभाव से देखे। हाँ पंडित इज द वन हु सीज एवरीवन विद इक्वानिमिटी। हाँ, अगर वो आ गया तो आप पंडित, अदरवाइज तो ज्ञान अधूरा है। और हमेशा याद रखना, ज्ञान हमें धोने के लिए है। हाँ, जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना, ज्ञान साबुन जैसा है। हाँ, आप हाँ साबुन शरीर पे लगाते हो तो फिर क्या रहने देते हो? नहीं नहीं, बहुत महंगा साबुन है, नहीं, धो देते हो। ज्ञान वैसा है, ज्ञान खुद को धोने के लिए यूज करो। उससे मटका नहीं भरना। मटका किससे भरना? माखन से भरना। माखन कब आएगा? जब खुद को मथोगे। हाँ, तो उस दिन जब उन्होंने ऐसे बोला, तो एक्चुअली वो लोग ने मेरे पे मतलब ब्लेसिंग्स ही किया, क्योंकि मैं मथा ना उसमें। हाँ हाँ मेरा तो मंथन हो गया ना कि अरे ऐसे कैसे बोल सकते हैं। हाँ, सारे कंटेंट क्रिएटर्स बुरे कैसे हो सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। हाँ, हम लोग भी तो वीडियोस डालते, फोटो डालते फेसबुक, फिर देखते कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने देखा। हाँ, हम्म, तो हाँ, आई डोंट नो, स्टूडेंट कैप पहन के रहोगे ना, खुश रहोगे और यंग रहोगे, जवान रहोगे। हाँ, जवान रहने के लिए हम लोग इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन जवान रहने का सबसे बेस्ट तरीका है स्टूडेंट बन के रहो। हाँ, द मोमेंट हम टीचर बनते हैं ना, जल्दी बुढ़े हो जाते हैं। हाँ, लेकिन स्टूडेंट हाँ बनते हैं ना, तो बहुत यंग रहते हैं। हाँ, अच्छा, टीचर बनते हैं तो बूढ़े हो जाते हैं, तो ऐसे नहीं सोचना कि अरे आटोलिंग का टीचर नहीं बनेंगे, बूढ़े हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, अगर आप है, इंस्ट्रूमेंट बनते हैं ना, अगर आप उनके इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, हाँ, उनकी बांसुरी बनते हैं ना, हॉलो एंड एम्प्टी। हाँ, खाली और खोल बांसुरी बनते हैं ना, तब तो और भी आप मधुर हो जाएंगे, और भी आप ज्यादा जिएंगे यंग बन के। हाँ, तो स्टूडेंट बनो या बांसुरी बनो कृष्णा की, टीचर मत बनो। हाँ। मैं सर गुरुदेव का डिवोटी बनने, डिवोटी हूँ, डिवोटी ही रहूंगी। मेरा बेटी टीचर बनेगा हाँ, बड़ा तो होके। नहीं, आप इतना नॉलेजेबल हो, आप भी टीचर बन सकते हो। हाँ। नहीं सर, मुझे वो आप लोग के जैसे बोलना नहीं आता, मुझे समझ में बहुत टाइम लगते है एक बात समझने के लिए। आपको पता है टीचर में सबसे बड़ा गुण क्या होता है? यस सर। व्यासपीठ पे बैठना और चुप रहना। फिर जो बोलते हो हाँ गुरुदेव बोलते हैं। हाँ, मैं यहाँ बैठ के इतना बोलता हूँ तो आपको लगता होगा अरे गौतम को कितना नॉलेज है। मैं कुछ नहीं बोलता, जो बोलते हैं वो बोलते हैं। जो अच्छा बोला वो उन्होंने बोला, जो बुरा बोला वो मैंने बोला। जितना मैं खाली रहूंगा ना, हाँ, और जितना मैं चुप रहूंगा ना, उतना ज्ञान आएगा, बाकी नहीं आने वाला। हाँ, तो हाँ, जितना व्यक्ति को लगता है ना कि मुझे कुछ नहीं पता, वो सबसे अच्छा टीचर है। क्योंकि वो फिर नहीं बोलेगा, फिर गुरुदेव बोलेंगे। आप समझ गए? जब हम बोलना शुरू करते हैं ना, तो सारा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। हाँ, क्या वो बोलते हैं ना, गुड़ गोबर हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। हाँ, हमें तो ऐसे ही रहना है कि अरे मुझे तो कुछ नहीं पता, गुरुदेव आप ही करो जो करना है। हाँ, तो सबसे अच्छा टीचर वही है। अब बाबा दिनेश भैया है ना, कोर्सेज लेते थे 150 लोगों का। तो उनको लगता था अरे वाह, हम लोग 150 लोगों का हर महीने कोर्सेज ले रहे हैं। हाँ, यस प्लस जब नया नया आया था, तो गुरुदेव के पास गए थे, तो गुरुदेव ने पूछा कैसे चल रहा है? तो बोला अच्छा चल रहा है, 150 लोगों का हर महीने हो रहा है, 150 200 लोगों का। तो गुरुदेव ने बोला अरे तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो भी ये लोग कंफ्यूज हो गए, क्या मतलब, क्या कर रहे हैं अभी? हाँ, तो बोले 2-3 हजार लोगों का कोर्स लो। तो बोला ओके। हाँ, तो पूछा कि कितने महीने महीने में करोगे? तो बाव बाव ने ऐसा कैलकुलेट किया और बोला 4 महीने।
तो गुरुदेव ने बोला 15 दिन में करो। तो उन्होंने कर भी लिया, 2700 लोग का कोर्स किया। तो फिर गुरुदेव को पूछा उन्होंने, गुरुजी अब इतने बड़े लोगों को तो हम, इतने ज्यादा लोगों को तो हमने कभी सिखाया नहीं, हमें तो आता नहीं है, जैसे आप अभी बोल रहे थे ना हमें तो आता नहीं है। हाँ, तो बाऊ ने, देखो बाऊ जितने सारे कोर्सेज लेने के बाद भी उन्होंने गुरुजी को बोला कि हमें तो आता नहीं है, कैसे करें। हाँ, तो हम लोग सब लोग एक ही लेवल पे, ऐसा नहीं सोचना कि वो ज्यादा हम कम, सब एक ही सही से है। तो उन्होंने पूछा गुरुदेव को, गुरुदेव हमें तो आता नहीं है इतने सारे लोगों को सिखाना, हम कैसे सिखाएंगे। तो गुरुदेव ने बोला बस जाके बैठो, बाकी मैं संभाल लूंगा। हाँ, तो बाबू शेष हम लोग गए और चुप बैठ गए। फिर जो कोर्स लेना था वो उन्होंने लिया। मतलब बाबू के मुंह से ही शब्द निकले, लेकिन वो चुप बैठे थे, बोलने वाला कोई और था, करने वाला कोई और था। हाँ, इसलिए जो भक्त होता है ना वो सबसे महान होता है, ज्ञानी सबसे महान नहीं होता, भक्त ही महान होता है। क्योंकि ज्ञान क्यों हम सुनते हैं, कि भक्त बन सके, और एक बार भक्त हाँ, बन गए फिर ज्ञान का क्या जरूरत। बराबर। अच्छा, जिसको लेट हो रहा है जाना है वो जा सकते हैं। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है, कुछ शेयर करना है। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। कैसे हो? बढ़िया भैया, एक बात बोलना चाहता हूँ, जैसे हाँ कहीं भी हम कोर्स ऑर्गेनाइज करना हो या कुछ भी करना हो, तो जैसे आपने बोला भी बिल्कुल खाली होकर जाओ, हाँ कुछ भी ना अपने मन में, सब गुरु जी को छोड़ दो। मेरे साथ हुआ था एक बार स्टार्टिंग में, जब बायोटीपी किया था मैंने, तो नवचेतना वगैरह ले रहे थे, तो आता था तीसरे दिन भोजन के बारे में आता है, जो खाना खाने से पहले पानी पीना चाहिए, खाना खाने के बाद पानी पीना चाहिए। मेरे को इतना नॉलेज नहीं थी, तो मैंने बोला चलो छोड़ो करे। तो बच्चे बोलते नहीं नहीं सर बताइए हमें, फिर उनके पेरेंट्स वो भी बोल रहे थे बताइए बताइए, मतलब अब क्या करूं। अब फंस गया, अपने सीनियर टीचर को कॉल किया, वो भी ना उठाए। मैं कहा, अब क्या करूं। मैंने जो करेंगे गुरुजी करेंगे, अब गुरुजी आप ही के हाथ है। पता नहीं कहाँ से इतनी सद्बुद्धि आ गई गुरुजी की दया से। राख उठाया, खाली गिलास में फेंका, ये हो गया आपका खाना, सीधा डाइजेशन के लिए चला गया। अगर पानी होगा, पानी में थोड़ा सा धूल उठाई भोजन के नाम की, और पानी में फेंकी और घोल दिया। अभी पानी को भी पचने के लिए टाइम लगेगा, भोजन को भी। बोल दे वाह, कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। वो है ना, जब तन मन से गुरु जी के पास छोड़ दिए सब कुछ, तो गुरु हाँ जी खुद करेंगे। हाँ, तो टीचर ये बनने के लिए सिर्फ यही चाहिए होता है, कुछ ज्ञान नहीं चाहिए होता, ज्ञान तो सिर्फ धोने के लिए होता है। ज्ञान तो वही देते हैं। हाँ खाली भाव से जाओ, बिल्कुल निस्वार्थ भाव, खाली भाव से जाओ, खुद ब खुद काम होता जाता है। हाँ, सच है। हाँ, कर तो सब वही रहे, हम लोग तो सिर्फ ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ, जैसे कृष्णा बोल रहे ना कि अरे इन सबको तो मैंने ऑलरेडी मार ही दिया है, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सबको मैंने मार ही दिया, तू तो सिर्फ बाण चला के एक्टिंग कर रहा है मारने की। तो ऐसा है, हमें सिर्फ एक्टिंग करना है, वो कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही सारा काम करेगा। आप समझ रहे हो ना। बस हाँ, वो हम लोग सोहम सोहम का बटन सिर्फ दबाते हैं। हाँ, और फिर वो होने के बाद स्टूडेंट बोलते हैं अरे आपने क्या करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे हमने क्या किया, हमने तो सिर्फ एक बटन दबाया, करने वाला तो कोई और ही है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे दिनेश भाई। ओके, तो हम लोग मिलते हैं शाम को सत्संग में, जो लोग आ सकते हैं, जो लोग नहीं आ सकते उनको हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक। ओके, जय गुरुदेव अंजना जी।